Good morning. This is Imranul Haq. Hope all of you are doing well. And this is book 90, and it is test 4, section 2. You can say Purcell Memorial Training Scholarship. Three offered, three offered training, three three offered per years. Okay, let's start. Okay, the questions, we will see the questions first. These are the questions you can see. Okay, no more than 3 words. Okay, questions below, answer the questions below. No more than 3 words and numbers. Okay, 3 वर्ड से या नंबर से ज्यादा आप नहीं लिखेंगे. फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज वेल फ्रॉम द टेक्स्ट. Write your answer in boxes. Boxes are not given as we are doing just practice. We'll write down the answer just on the practice sheet, I mean this sheet. Let's start. To obtain a scholarship, what is the minimum course length? स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कोर्स की कम से कम जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है? ठीक है, सो वी विल चेक हियर. ओके जी. Purcell Training Institute offers a number of scholarship for people from overseas. जो ओवरसीज हैं, बैरून ममालिक से लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप वज़ाइफ दिए जा रहे हैं. who plan to live in Australia, those who want to live in Australia and need retraining and they want to get training as well. Again, these scholarships are available for full-time study. These are for full-time students and are not offered of course of less than 20 weeks. Less than 20 weeks are courses are not being offered, नहीं दिए जा रहे. तो आपके कोर्स की लेंथ फिर क्या होगी जी? इससे कम नहीं हो सकते. मिनिमम जो है वो आपके पास 20 वीक्स होंगे. 20 वीक्स आप लिखते हैं, 20 वीक्स. नेक्स्ट है जी, व्हाट डू स्कॉलरशिप विनर्स रिसीव? स्कॉलरशिप विनर रिसीव टुवर्ड्स द एयर फेयर if they live over 25 किलोमीटर फ्रॉम सिडनी. अगर वो सिडनी से तकरीबन 2500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हैं, तो जो स्कॉलरशिप जीतने वाले हैं उनको हवाई किराए के साथ क्या वसूल होता है? वो हवाई किराए के एयर फेयर्स जो हैं उसके लिए क्या वसूल होता है? ठीक है जी. तो वो लोग जो 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर रहते हैं सिडनी से और वो स्कॉलरशिप जीतने वाले हैं, तो टिकट के अलावा उनको क्या मिलता है जी, वो भी देखते हैं जी. टिकट के लिए उनको क्या मिलता है, ये है जी. ये देखें 2500 किलोमीटर, ये है हमारे पास 25 किलोमीटर. ठीक है जी. तो हम पढ़ते हैं, दी स्कॉलरशिप ऑफर रिटर्न एयर फेयर्स टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम योर होम कंट्री. If you get these scholarship now, the Australian Institute will provide you a return ticket. Okay, return ticket, yes, return airfares, provided that the condition is that distance by air from your city of departure to Sydney is not more than 25 kilometers. लेकिन शर्त ये है कि फासला जो है ना, आपकी जहाँ से आपने जाना है वहाँ से सिडनी तक, वो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इफ़ द डिस्टेंस एक्सीड्स, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, दिस अमाउंट, अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है फासला, यू विल प्रोवाइडेड विद एयरलाइन वाउचर. तो आपको क्या दिया जाएगा जी? एयरलाइन वाउचर दिया जाएगा. तो ये भी देख लें कि अगर इफ़ दे लिव ओवर 25 किलोमीटर्स, अगर 2500 किलोमीटर से ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या कहता है? इफ़ द डिस्टेंस एक्सीड्स, अगर ये ज़्यादा हो जाता है, ओवर 25 हो जाता है ना, तो then you will get a voucher, then you will get vouchers. We'll write down vouchers here. Yes, vouchers. Write down the correct spellings. Okay. Next one. Who pays for dependent children to travel? Who pays? Let's see who pays. Okay. We'll see who pays. G. Personal removal expenses of scholarship holder are not paid. If the scholarship holder is married at the time of applying for scholarship, some travel and removal cost may be paid for the husband of wife. Travel cost or support for dependent children. See this. Dependent children.
Okay, and we have here dependent children. Who pays for dependent children to pay? Who is paying? Okay, who is paying? Let's see who is paying. Okay, dependent children here. Travel cost or support for dependent children are at scholarship holders expense. Who is paying? Scholarship holder is bearing the expense of dependent children. Scholarship holders will write scholarship holders. Okay, scholarship holder. Finish. Okay, let's see the next one. What is the next boss is telling, and that is Parcel Training Institute as well. You can see Parcel Training Institute. We'll see the questions again. You can see these are the questions, true, false, and not given. All of the staff have overseas teaching experience. They have got education from abroad. We'll check. Okay, have they got education, all of them, from any other country? Let's see. Okay, let's see. Welcome to the G. Welcome to the Parcel Training Institute. We hope that you will enjoy your course of training with us. This information is provided to introduce our institute and let you know that some of important feature of professional training courses. Parcel Training Institute was established to provide high quality short duration training, ठीक है, programs of a range of professional needs. It has highly trained and experienced teaching staff. जी, इसमें हाईली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ, मैनी ऑफ होम, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा हैव टॉट ओवरसीज, जिन्होंने बैरून मुल्क पढ़ाया है। इनमें से मैनी ऑफ होम, उनमें से कई लोगों ने, लेकिन यहाँ पे कहता ऑल ऑफ द स्टाफ, लेकिन ऑल ने तो नहीं किया, मैनी ऑफ होम है, उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया है, ऐसे ही है ना जी। तो फिर इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन आ रही है, सब ने नहीं पढ़ाया, बल्कि उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ाया है। तो आप देख लें, यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द स्टाफ है ओवरसीज टीचिंग एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पे वो कहता है यहाँ पे कि ये देखिए मैनी ऑफ होम टॉट ओवरसीज, तो कुछ जो हैं उन्होंने, काफ़ी हैं जिन्होंने उन सब में से पढ़ाया, लेकिन सब ने नहीं। ऑल मॉड्यूल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तमाम मॉड्यूल जो हैं उनकी लेंथ जो है वो बराबर है। तो वील चेक। Parcel Training Institute provides courses in 10 वीक्स मॉड्यूल। ये जी 10 वीक्स के हैं हमारे पास, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये इक्वल है, ठीक है जी। तमाम जो मॉड्यूल्स Parcel Training Institute provides courses in 10 वीक्स मॉड्यूल, 10 वीक्स हैं सारे के सारे। मोस्ट जो हैं ये वाले हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 मॉड्यूल्स, ऑल्सो आर 3 or 4 मॉड्यूल्स लॉन्ग, देयर इज अ ब्रेक ऑफ 2, नहीं तो यही है जी हमारे पास इन 10 वीक्स। तो इसका मतलब है कि 10 वीक्स के जो है ना जी वो इसके हैं। Parcel Training Institute provides courses in 10 वीक मॉड्यूल्स, 10 वीक जो है ना, 10 हफ्ते जो है उन मॉड्यूल्स हैं, तो वो भी है इक्वल लेंथ के ही हैं, यानी 10 वीक्स के ही हैं। तो ये हमारे पास है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आर encouraged to take holidays. Students are motivated to take holiday breaks in 2 week, okay, between the modules. During the modules they are encouraged to take holidays, okay, for 2 weeks. Let's see whether they are allowed or no. Someone is encouraging them or no. See, there is a break of 2 weeks between each module, okay। हर मॉड्यूल के दरमियान दो वीक की ब्रेक है। बट सिंस प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स आर सेट फॉर कंपटीशन इन दीज पीरियड्स, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो हैं और असाइनमेंट्स जो हैं ये इस दौरान कंप्लीशन के लिए जारी होती हैं, मुकम्मल होने के लिए जारी होती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक वेकेशंस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस दौरान वेकेशन छुट्टी नहीं मिल सकती। तो ये तो कहता है कोर्सेज में स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू टेक हॉलीडेज ड्यूरिंग ब्रेक बिटवीन मॉड्यूल्स के दरमियान तो कंप्लीशन हो रही होती है, तो छुट्टी तो नहीं मिल सकती, वो इन हॉलीडेज उनको नहीं मिल सकती।
तो ये तो फिर गलत होगा, फाइल्स होगा। कोर्सेज में है वेरी डिफरेंट टाइम टेबल्स, कोर्सेज के टाइम टेबल जो हैं वो डिफरेंट होंगे। लेट्स सी जी। ओके, सिंस ईच कोर्स हैज़ वेरिंग नीड्स, क्योंकि हर कोर्स की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। दे आर नॉट नेसेसरीली एनी सेट टाइम टेबल फॉर द क्लासेज, तो क्लासेस के लिए किसी ख़ास टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती अक्रॉस ऑल प्रोग्राम, तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स में। यू विल नीड टू कंसल्ट द टाइम टेबल फॉर योर कोर्स, अपने कोर्स के लिए टाइम टेबल जो है उसको कंसल्ट कर लें, विच इज़ प्रिंटेड एट द फ्रंट ऑफ योर ओन कोर्स मैनुअल, वो आपके वहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी, वी विल चेक नाउ दिस courses may have different timetables. Yes, you can see courses may have different timetables. Such courses has varying need, they have different needs, there are not necessarily any set hours for classes, all programs, and there are not any timetable, okay, any set timetable set scheduled for these programs, and you can say different timetables, so there are not necessarily any set hours. Okay, so this is matching, that's why this is true. Let's see the next one, that is 19. You can still obtain an attendance certificate if you have been absent through illness. अगर आप बीमारी की वजह से एबसेंट रहे हैं तो फिर भी आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो है वो मिल सकता है। ठीक है जी, अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है अगर बीमारी की वजह से आप एबसेंट रहे हैं। तो देखते हैं जी कि अगर एबसेंट रहे हैं, ये इलनेस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं थोड़ा सा। Please be reminded that Purcell Training Institute cannot provide attendance or achievement certificates for students who have missed part of their course. याद रखें कि पर्सल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको अटेंडेंस या अचीवमेंट सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दे सकता हु हैव मिस्ड पार्ट ऑफ देयर कोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट रीडिंग देयर ओन कोर्सेज टाइम टेबल प्रॉपरली, जिन्होंने अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपनी रीडिंग जो है वो नहीं की और उन्होंने अपनी रीडिंग पार्ट जो हैं कोर्सेज जो हैं वो मिस कर दिए हैं, उनको ये दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिर लेजिटिमेट रीजंस, अगर जायज़ वजूहात हैं फॉर नॉन अटेंडेंस, उनके लिए जो हाज़िर नहीं हुए यानी बीमारी की वजह से, विल बी गिवन कंसिडरेशन, तो उनके लिए सोचा जाएगा, प्रोवाइडेड दैट, और उनको प्रोवाइड किया जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है जी, बशर्ते कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करें, यानी कोई एविडेंस जो है वो लेके आए, कोई पेपर जो है एविडेंस का वो लेके आएंगे तो फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर वो बीमारी की वजह से हैं जो अटेंड नहीं कर सके, एब्सेंट रहे हैं, तो फिर इन दिस केस अगर तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करते हैं, एन अचीवमेंट सर्टिफिकेट विल बी इशूड, तो फिर उनको अचीवमेंट सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कहता है जी, वो भी देख लेते हैं। यू कैन स्टिल ऑब्टेन अटेंडेंस सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव बीन एब्सेंट थ्रू इलनेस। ठीक है जी, तो वो कहता है कि अगर आप इलनेस के ज़रिए यू कैन स्टिल ऑब्टेन एन अटेंडेंस सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव बीन एब्सेंट थ्रू इलनेस, अगर इलनेस के ज़रिए है तो आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो है ना वो अभी भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो वो कहता है कि इन दिस केस, ठीक है जी, लेजिटिमेट रीजंस हैं बीमारी की, विल बी गिवन कंसिडरेशन, तो फिर आपको बारे में सोचा जाएगा बशर्ते कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे तो फिर एन अचीवमेंट सर्टिफिकेट ओनली बी गिवन। ठीक है, अदरवाइज अगर तो वो देगा, ठीक है, तो फिर वो कहता है अटेंडेंस इफ़ यू हैव बीन एब्सेंट थ्रू इलनेस, तो आपको तो मिल जाएगा अचीवमेंट जो है ये, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देंगे तो फिर आपको तो मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि यू कैन स्टिल ऑब्टेन, ठीक है जी, अटेंडेंस सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम इलनेस। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि ये फॉल्स होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परमिशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू ब्रिंग गेस्ट इनटू द रेस्टोरेंट। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है कि वो होटल्स में, रेस्टोरेंट में अपने गेस्ट को ले आएँ। देखते हैं जी कि स्टूडेंट्स को इजाज़त है कि वो होटल्स में अपने गेस्ट्स को ले आएँ। हम देखते हैं जी यहाँ पे
The opening times of the snack bar, coffee lounge, and restaurant are printed below your course timetable. Okay, even these all these things are written on your course timetable. No bookings are required for any of the eating place except the restaurant for Friday and Saturday. Guests normally on public, however, group booking made for restaurants. यहाँ पे कहीं पे भी गेस्ट का जिक्र नहीं आ रहा। ठीक है जी, हम नेक्स्ट देख लेते हैं कहीं पे गेस्ट का कोई जिक्र है। गेस्ट का जिक्र, चार्ज पर्सन स्टूडेंट्स, कार्ड्स अवेलेबल, सब्सक्रिप्शन। जी, गेस्ट्स ऑफ पर्सनल स्टूडेंट्स आर वेलकम टू यूज द स्विमिंग पूल। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं मेंशन किया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो एनजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉफी लॉन्ज इज क्लोज्ड इन द इवनिंग। कॉफी लॉन्ज इज क्लोज्ड इन द इवनिंग। शाम के वक्त कॉफी लॉन्ज जो है वो बंद होता है। तो हम देखते हैं जी कि यहाँ पे है कहीं पे कॉफी लॉन्ज। जी ये देखें कॉफी लॉन्ज, हम देखते हैं जी यहाँ पे the opening times of the snack bar, coffee lounge, and restaurant are printed below your timetable. No bookings are required for any of the eating places except the restaurant for Friday and Saturday dinner. कोई बुकिंग नहीं खाने के लिए स्वाए होटल्स में फ्राइडे और सैटरडे को, वो भी खाने के लिए, रात के खाने के लिए। ठीक है जी, बुकिंग होगी बस। ठीक है, द कॉफ़ी लॉन्ज एंड रेस्टोरेंट आर नॉट नॉर्मली ओपन ऑन पब्लिक हॉलीडेज। ये आम अवामी छुट्टियों पर नहीं खुली होती, कॉफ़ी शॉप भी और रेस्टोरेंट्स भी। However, a group booking may be made for the restaurant for dinner on such days. ताहम कोई ग्रुप बुकिंग है वो इन दिनों में शाम के खाने की बुकिंग कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ अ मिनिमम ऑफ। देखें ये भी नहीं कहीं पे लिखा कॉफ़ी लॉन्ज जो है वो शाम के वक्त जो है वो बंद रहता है। ठीक है जी, ये भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ग्रुप्स ऑफ 20 भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ 20 or more can make reservations. They can make booking to dine, to eat at the restaurant on public holidays. Just we have read now that they can make booking on public holidays if they are 20 or more than 20. Okay, let's see, we just read this. Yes, you can see this. However, a group booking may be made for the restaurant for dinner on such days. यानी holidays को आप बुकिंग कर सकते हैं, provided that what is the condition, that is minimum of 20 people in the group. तो कम से कम 20 होने चाहिए। a non refundable deposit will be required for such booking. ठीक है जी, then no refundable deposit. Okay, if you pay advance that will be refundable. Okay, so not refundable. Okay, so you can say provided that there is a minimum of 20 people in the group. तो कम से कम जो है ना वो 20 ज़रूर होने चाहिए, 20 होने चाहिए जी। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास गेस्ट में यूज़ द स्विमिंग पूल। अभी हमने ये पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना जी हमने, तो हम देखते हैं फिर इसको देखते हैं जी। यहाँ पे था, ये देखें, गेस्ट ऑफ पार्सल स्टूडेंट्स आर वेलकम टू यूज द स्विमिंग पूल बट नॉट द जिम्नेजियम एरिया। दे कैन यूज स्विमिंग पूल बट नॉट द gymnasium areas. Okay, so see, this one is really very easy. Okay, you see it is easy. The next one and the last one is, you can see, okay, students are unable to enter the institute after 8:30. Students cannot enter the institute after 8:30. स्टूडेंट्स 8:30 के बाद उसमें एंटर नहीं हो सकते। देखते हैं जी एंटर हो सकते हैं कि नहीं। 8:30 आपके सामने है, 8:30 आपके सामने है। आफ्टर 8:30 PM द फ्रंट डोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर लॉक्ड। सामने वाले दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। इफ़ यू नीड टू गेन एक्सेस, अगर आप आना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में आफ्टर दिस टाइम 8:30 के बाद, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द केयर टेकर बाय प्रेसिंग द डोर बेल। ओके, कॉन्टैक्ट द केयर टेकर and press the bell and speaking through the intercom. Okay, talk to him through intercom. If you are admitted by the caretaker, if you go inside, you will be required to show your student card.
ऑल्सो शो देम स्टूडेंट कार्ड। तो स्टूडेंट कार्ड दिखाएंगे तो आप अंदर जा सकते हैं ना जी इस टाइम के बाद भी। वो तो कहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं जा सकते, अनएबल टू एंटर द इंस्टीट्यूट, नहीं जा सकते। वो कहता है कि अगर आप आईडी कार्ड दिखाएं, डोर बेल करें, केयर टेकर के साथ बात करें तो आप अंदर जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पर्सनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।